नमस्कार, आप देख रहे हैं होम्यो मिरर और मैं हूं स्नेहा। आज बड़े बदलाव का दिन है। हम होम्योपैथी के 200 साल के लंबे सफ़र में एक शानदार पड़ाव पर आ पहुंचे हैं और हमारा ये शो मेडिकल प्रैक्टिस की दुनिया में एक बदलाव लाने की कोशिश की ओर पहला कदम है। होम्यो मिरर होम्योपैथी पर दुनिया की सबसे पहली वीडियो मैगजीन है और ये हमारे टीम की पिछले 7 सालों की मेहनत का नतीजा है, जो ये प्यारा सा तोहफा आप स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आए हैं। ये एक ऐसा मंच है जहां ना सिर्फ सच बताया जाएगा बल्कि दिखाया भी जाएगा। होम्यो मिरर आपकी आँख, कान और चेतना बनना चाहता है। होम्यो मिरर की भाषा आप यंगर जनरेशन की भाषा है। हमने कभी सच से और अपनी विश्वसनीयता से समझौता नहीं किया और इस नए जनरेशन को साथ लेकर चलते हुए भी हमारे नैतिक मूल्य नहीं बदले। हम आपके साथ होम्योपैथी को नई ऊंचाई पर ले जाने का सफ़र आज से शुरू कर रहे हैं। देश का पहला वीडियो मैगजीन होने का गौरव होम्यो मिरर के पास है। होम्योपैथी हमेशा से ही आलोचनाओं और विवादों से घिरा रहा है, पर 200 सालों के बावजूद भी हम इन विवादों से मुक्त नहीं हो पाए हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद ही जिम्मेदार हैं। आज हम में एकता की कमी है और हम में से अधिकतर लोग अपने मेथडोलॉजीज़ को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। होम्यो मिरर एक कोशिश है हम में एकता लाने का, एक कदम है उन सपनों को सच करने का जो कई साल पहले हैनीमैन और हमारे मास्टर्स ने देखा था। पिछले 200 सालों में बहुत कुछ बदला है और बदलते वक्त के साथ प्रैक्टिस का तरीका भी बदल गया है। हमारे पास कई सारे मेथडोलॉजीज़ हैं और ये मेथडोलॉजीज़ किस हद तक सही हैं और किस हद तक इन पर निर्भर रहा जा सकता है, इनके अच्छे बुरे पहलू पर हम निडर होकर आप स्टूडेंट्स को पहुंचाते हैं सारी जानकारी, ताकि आप सोचने पर मजबूर हो सकें, अपने अच्छे बुरे की परख कर सकें। हम जानते हैं ये हमारा सफ़र काफ़ी लंबा और मुश्किल है, पर हम विश्वास रखते हैं कि सच को सामने लाने में हमारे इस सफ़र में हर एक स्टूडेंट हमारा साथ देंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि आगे भी हमें आपका सहयोग मिलता रहेगा। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करने से पहले याद करते हैं हमारे मास्टर फादर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को। When homeopathy was discovered more than 200 years ago, our master had an aim, a purpose, which was to serve humanity. But today, either to compete with the so-called modern system of medicine or to earn our bread and butter, we have far left behind the very aim and purpose for which homeopathy was once discovered. Many of us have buried the theories, principles and laws on the basis of which our system was once built. This is a sincere attempt from our end to try and excavate those buried theories, principles and laws. Our aim is not only to make the process of learning easy and effective, but interesting too. We do not intend to mount any of our theories or imaginations upon our audience, but instead we shall try our best to explain the facts and the truth that is laid in our literature in a very simple and convincing way with the aid of real-time videos, audios, multimedia clips and images. So before we begin, let's explain to you the concept of this video magazine. Hi,
homeopathy cannot do any miracles. But the result, which may sound as a miracle to a layman, in fact is the outcome of the hard work and proper application of our theories and principles by a true homeopath. So, it means that every homeopath who possesses a thorough knowledge of our theories and principles can bring out such miracles. Now, then, the question is, why are such miracles not happening every now and then? Why do most of us fail to bring out such miracles? Either they have not understood our basic theories and principles, or they do not believe in what they have studied and understood. With this initiative, our main aim is to throw light on the importance of these buried theories and principles. We aim at making you believe that even still these theories and principles work. We aim at bringing back the era of classical homeopathy. We aim at making you aware of the fact that giving patents and combinations is not what homeopathy is all about. We aim at generating interest within the students to practice classical homeopathy. We aim at making them realize that all their dreams can come true if they are sincere towards what they study. We aim at teaching them the art of homeopathy. And lastly, we aim at generating genuine homeopaths for the survival of our system in the future. It is said that the aim of an argument should not be to win or lose, but progress. So, we aim at the progress, and for the same reason, we welcome healthy arguments. We do not insist our audience to believe us blindly. But if you think that you are still matured enough to think for yourself before you decide, you are free to make your choice. We only aim at making you think. At the end, you are free to take your decision and follow the path that you feel shall take you to your dream destination. Those who think that it's too late for them to start from the beginning, again, we would suggest that it's better late than never. We are here to make you believe that all of your lost dreams can still come true if you follow the route of homeopathy too. I understand it's difficult to believe, so this is an initiative to make you believe in a convincing way. Give us a chance to make your future bright. Give us a chance to rebuild your lost hopes. Give us a chance to build your confidence, and finally, give us a chance to help generate genuine homeopaths. कहते हैं रामायण के युद्ध में जब लक्ष्मण मेघनाद के बाण से मूर्छित हो गए तो हनुमान को हिमालय पर्वत भेजा गया संजीवनी बूटी लाने के लिए। पर जब वो वहाँ गए तो संजीवनी बूटी को पहचान ही नहीं पाए और अंत में वो पूरा पहाड़ ही उठा लाए। अब आप सोच रहे होंगे कि हैनीमैन की जगह हनुमान की बात क्यों चल रही है। हम में से बहुत लोगों की हालत भी बिल्कुल हनुमान की तरह है। केस टेकिंग के दौरान हमें कई सिम्टम्स मिलते हैं, पर हमारी संजीवनी बूटी है वो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जिसकी मदद से टोटलिटी फॉर्म कर सकें। इसलिए कोई भी केस लेने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें पेशेंट से क्या चाहिए। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं और ऑब्जेक्टिव ऑफ केस टेकिंग विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ केस टेकिंग। ट्रीटमेंट का पहला स्टेप है केस टेकिंग और आपका रिजल्ट पूरी तरह से आपके केस टेकिंग स्किल पर निर्भर करता है। आपकी एक छोटी सी गलती भी कभी कभी बहुत निर्णायक साबित हो। इसलिए सबसे पहले हम में से हर एक को केस टेकिंग का स्किल मास्टर करना चाहिए। कहते हैं केस टेकिंग एक आर्ट है, एक कला है, और किसी भी कला या आर्ट को मास्टर करने के लिए उसे सीखने का इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। जिसको ड्राइंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर उसे एक हाथी की तस्वीर बनाने को बोलो तो वो शायद कुछ इस तरह से होगा। ये इंटरेस्ट आप तभी डेवलप कर पाएंगे जब आप केस टेकिंग के ऑब्जेक्टिव को समझें। यानी हमें एक पेशेंट से क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए और उसे कैसे हम निकाल सकते हैं।
तो चलिए सबसे पहले हम एक केस को डिफाइन करते हैं। केस इज नॉट merely a combination of symptoms, but an instance of disease, an event and a change in the whole person from his original state of health to his present state of sickness. It is the totality of the alternations. It comprises of all the expressions on mental, physical plane and on parts, which logically form the portrait of the disease. Reference Essentials of Repertorization by S.K. तिवारी। अभी जो डेफिनेशन हमने सुना उससे ये बिल्कुल साफ है कि केस कुछ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स का कॉम्बिनेशन नहीं, बल्कि एक मानसिक और शारीरिक स्तर पर हुए उन सारे परिवर्तनों की समग्रता यानी टोटैलिटी है। चलिए हम आपको कुछ उदाहरण दिखाते हैं एक बीमार व्यक्ति में इन मानसिक और शारीरिक स्तर पर आए परिवर्तनों का। कभी कभी पेशेंट के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन या जानकारी उनके बाईस्टैंडर से मिलती है। मुझे ऐसा कोई टेंशन नहीं है, उसकी तरफ से थोड़ा फिजिकली मतलब वो रहता है, फिजिकली क्या एक सेक्स के बाद बहुत ज़्यादा उसकी रुचि नहीं है। हाँ, और मैं थोड़ा ज़्यादा रुचि रखता हूँ जी। खाने के लिए जो भी हम देंगे उसको बोलेगा इसे नहीं खाएगा, इसे नहीं खाएगा। तो वो उसका पसंद का खाना मांग रहा है हम लोग को। क्या पसंद है उसको? जो चीज उसका मुंडी में घुसेगा वो मांगेगा। घर में नहीं होना चाहिए, उसको मालूम नहीं, हमको चाहिए तो चाहिए। शारीरिक स्तर पर आए ऐसे परिवर्तनों की जानकारी भी अक्सर हमें उनके बाईस्टैंडर से ही मिलती है। इसलिए पेशेंट के साथ साथ उनके बाईस्टैंडर्स की बताई बातों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मेक द पेशेंट स्पीक। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारे पास कई तरह के पेशेंट आते हैं। ऐसे कुछ लोग जो कि एक बार बोलना शुरू करते हैं फिर उनको रोकना बहुत मुश्किल है, या फिर कुछ ऐसे लोग जो एक शब्द में ही चुप हो जाते हैं या बिल्कुल भी नहीं बोलते। ऐसे भी कुछ लोग मिलते हैं जो खुलकर बात करने में वक्त लगाते हैं। पेशेंट चाहे कैसे भी हो, जब तक आप पूरे केस को समझ न लो, प्रिस्क्राइब करने में जल्दबाजी ना करें। जैसे जैसे हमारा ये सफर बढ़ेगा, हम आपको दिखाएंगे हाउ टू मेक अ पेशेंट स्पीक। अक्सर ये देखा गया है कि हम में से अधिकतर लोग जो कि बेसिक इंस्ट्रक्शंस हमारे मास्टर ने दिया है, एफोरिज्म 83 से 104 में उसे फॉलो नहीं करते। और यही वजह है कि ऐसे लोगों को 100% रिजल्ट नहीं मिलते और वो अपने सो कॉल्ड लकी हिट से ही खुश रहते हैं। यहाँ इस मंच पर अगले एडिशन से हम आपको दिखाएंगे कि ये क्यों जरूरी है उन बेसिक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना जो एफोरिज्म नंबर 83 से 104 में दिए गए हैं। सबसे पहले आप एक बात समझ लें, केस टेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच में। हालांकि इसे एक तरह का प्रोसेस माना जाता है, यानी इंफॉर्मेशन या जानकारी फ्लो होता है पेशेंट से डॉक्टर, पर हमें ये समझना है कि सही और सटीक जानकारी मिलने के लिए पेशेंट का खुलकर बोलना बहुत जरूरी है। और एक पेशेंट खुलकर तभी बोलेगा जब हम उनके स्तर पर जाकर उनसे बात करेंगे। केस टेकिंग फॉर्मेट के पन्ने भरने के लिए जब हम पेशेंट से बात करते हैं तो हमें अक्सर आधी अधूरी बात ही पता चलती है, जो शुरुआत से ही हमें मिसलीड कर देती है। कुछ इस तरह। ये सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था और हमारे अगले एडिशन से हम विस्तार में विश्लेषण करेंगे इस केस टेकिंग के कंप्लीट प्रोसेस का। ये बात याद रहे कि वो बेसिक्स हैं
जो आगे चलकर आपको एक सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर बनाए। और इस बात पर भी जरा सा गौर कीजिए कि जो इन बेसिक्स को फॉलो नहीं करते वो आज कहाँ पहुंच पाए हैं। लिटरेचर ही हमारी फाइनल अथॉरिटी है और यही वो एकमात्र रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो देखते रहें और सीखते रहें।